friends, today we are going to start the new chapter, The Fun They Had of class 9th Behive book. Okay, start the chapter. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अब स्कूल प्रेजेंट टाइम में जो स्कूल हैं, हमें पता है कि वी नाउ नो, हमें अब पता है कि फ्यूचर में इन फ्यूचर दैट स्कूल्स विल नॉट बी देयर इन विच schools now we are studying, we have books, we are going in one special building, but in future this will not be there. If schools will not be there, how will children study then? The diagram below में give you some ideas. हमें पता है कि जो हम अब जिस स्कूल में हम अब पढ़ने जाते हैं वो नहीं होंगे, फ्यूचर में वो नहीं होंगे, और फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो यहाँ हमें एक डायग्राम दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस डायग्राम से कुछ आइडियाज़ मिलेंगे अबाउट द फ्यूचर स्कूल्स. Let's see the diagram. See, here is written the schools of the future. The schools of the future. Okay. Learning through computers. There is not any school, not any books, so the children will learn from the computer. See, this is a computer and a child is sitting, and this is a virtual classroom. It is in the home, not in the school. See, here is only a computer devices, no any book. See, this is also a robotic device. This is all in the future. Now there is a human teacher. But in the future there will be robotic teacher, not human teachers. Okay. Here is one written moving a text. इसका क्या मतलब है कि जो हम बुक्स देखते हैं हमें उन्हें वो मूव नहीं करती, अपने आप पेजेस मूव नहीं करते, और वो स्क्रीन है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो जो स्क्रीन है वो अपने आप मूव करती है, हम इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं. अब हम चैप्टर पढ़ेंगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये आपकी नॉलेज का क्वेश्चन है. हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि पेयर में, बच्चों के पेयर में डिस्कस करने हैं कोई ऐसी 3 चीज़ें, 3 थिंग्स जो आप अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा, आपको अपने स्कूल में जो पसंद है, जो आप लाइक करते हो, 3 बेस्ट थिंग्स वो आपको लिखनी है. और एंड दैट वुड लाइक टू चेंज, और अपने स्कूल में जो चीज़ें अपने स्कूल के बारे में जो चेंज करना चाहते हैं वो लिखिए. आप चाहें तो अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. कैन यू इमेजिन अ टाइम when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? यहाँ पर बताया गया है कि हैव यू एवर रीड, आपने कभी रीड किया है टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स. अब आप रीड कर रहे हो लेकिन अब हमारे पास बुक्स भी प्रेजेंट है. क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि बुक्स भी कंप्यूटर पर होंगी, बुक्स पेजेस पर प्रिंटेड नहीं होंगी? और क्या आप ऐसी बुक्स को पसंद करते हो जो कि सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर ही हो? नेक्स्ट, now the chapter is going to start. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So now which year is going on? 2020. Okay, going on 2020. So this is the story in the future. Story is in the future. 2157, hundreds and hundreds year ago story is this. Ago, not after. Now this will come 2157, there will be no book. So this story is in the future. Here is two children in the story.
Margie and Tommy. They are cousins. Okay, they are cousins. So Margie wrote a diary on 17 May 2001, 57 at night. Margie wrote a diary that today Tommy found a real book. इसमें क्या बताया गया है कि अब 2020 चल रहा है, ये बात है 2157 की, ये फ्यूचर की है, ये स्टोरी फ्यूचर की है। इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है मार्गी और दूसरे का है टॉमी। और मार्गी एक नाइट को अपनी डायरी में ये लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मीन्स की असली बुक जो कि पेजेस पर प्रिंट है टॉमी को मिली, क्योंकि वो तो फ्यूचर के बच्चे हैं मार्गी एंड टॉमी, और वो ओनली कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बुक्स पढ़ते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि बुक्स पेजेस पर भी प्रिंटेड होती थी। और अब यहाँ पर बुक्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो बुक कैसी थी जो टॉमी को मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories was printed on the paper. वो बुक कैसी थी? वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी थी, क्योंकि वो तो 2157 में थे, तो वो पेजेस पर प्रिंटेड बुक्स नहीं पढ़ते थे, तो वो बहुत पुरानी थी। और जो मार्गी थी, मार्गीज ग्रैंडफादर once said that he was a little boy, his grandfather told him that मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने मार्गी को एक बार बताया था कि उस मार्गी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उसे बताया था मार्गी के ग्रैंडफादर को कि एक समय था जब सभी स्टोरी, सभी कहानियाँ पेजेस पर प्रिंटेड होती थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्होंने नहीं पढ़ी थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. यहाँ पर दे किसे कहा गया है? मार्गी एंड टॉमी को। उन्हें बुक मिली थी, तो उन्होंने जब पेजेस टर्न किए उस बुक के, वो बहुत बुक पुरानी थी, वो येलो हुई थी बुक, येलो। जो बुक ओल्ड हो जाती है वो येलो कलर की हो जाती है। एंड क्रिंकली मीनिंग यू कैन सी हेयर विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, मीन्स वो बुक बहुत फोल्ड हुई थी, बहुत डर्टी कंडीशन थी उस बुक की, क्योंकि वो ओल्ड थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that, स्क्रीन पर तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली मूव होते हैं जब हम उनको माउस से या किसी और चीज़ से मूव करते हैं, लेकिन बुक पर वो मूव नहीं होते थे। और क्योंकि उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी थी पेजेस पर प्रिंटेड की, वो सिर्फ कंप्यूटर पर ही थे, तो उन्हें वह बुक एक फनी लगी। उनको हंसी आ रही थी कि ये कैसी बुक है जिस पर वर्ड्स स्टिल वहाँ ही खड़े हैं, वो मूव नहीं कर रहे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने जब बुक का पहला पेज पढ़ा और फिर जब वो सेकंड पेज पर गए तो उन्होंने फिर बैक टर्न किया, वो सेम ही वर्ड्स थे जो वो पढ़कर गए थे फर्स्ट टाइम। लेकिन जब हम स्क्रीन पर एक बार कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, और जब हम दोबारा उसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जो बुक पर होते हैं वर्ड्स वो हमेशा सेम ही रहते हैं जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट, जी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. इसमें क्या है कि टॉमी, उसे ये बुक नहीं पसंद थी और वो येलो थी और वो मूव भी नहीं कर रही थी, वर्ड सेम थे, तो उसे ये बुक नहीं पसंद आई, उसे वो बहुत डर्टी लगी। तो उसने कहा जी व्हाट अ वेस्ट। वो उस बुक को एक वेस्ट ही बताता था, एक गार्बेज की तरह बताता था। और उसने कहा उसके ग्रैंडफादर से भी, जब आपके पास ये बुक थी तो आई गैस कि आपको ये थ्रो कर देनी चाहिए थी, आपको ये
फेंक देनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज वेरी डर्टी, सो टॉमी डिड नॉट लाइक. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब वो बता रहा है कि हम जो टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ते हैं उस पर 100 मिलियन बुक्स होती हैं और वो बहुत ही अच्छी होती है, हम उसे नहीं थ्रो कर सकते. लेकिन जो वो बुक पढ़ रहा था पेजेस पर प्रिंट थी, उसके तो वर्ड्स भी सेम थे और वो बहुत येलो एंड क्रिंकली थी, इसलिए वो कह रहा कि मैं अपनी ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बुक अपनी नहीं थ्रो करूँगा. सेम विद माइन, सेड मार्गी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So here is the given age of both. Margie's age was 11-year-old and Tommy's age was 13-year-old. So जब टॉमी ने कहा कि मैं ये बुक थ्रो कर देता, अगर मेरे पास होती इस टाइम, तो मार्गी ने भी यही कहा, सेम विद माइंड, मैं भी यही करूँगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक बुक जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे एंड दिस बुक द प्रिंटेड ऑन पेजेस वुड बी थ्रोन अवे at the time when the books was read. Okay, then she said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब मार्गी ने टॉमी से पूछा, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? Where did you find it? तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो टॉमी था जो वो बुक पढ़ने में बिजी था, तो उसने सिर्फ अपनी फिंगर से ही पॉइंट किया कि यहाँ इन द एटिक. एटिक इज लाइक द स्टोर रूम वेयर डर्टी थिंग्स एंड सम थिंग्स आर स्टोर्ड विच आर नॉट यूजफुल मच. दैट इज द एटिक. हेयर यू कैन ऑल्सो सी द मीनिंग ऑफ एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसे हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं. उसने कहा कि मुझे एटिक में मिली. व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल. स्कूल? जब उसने पूछा व्हाट्स इट अबाउट, तो टॉमी ने कहा स्कूल. तो मार्गी बहुत स्कॉर्नफुल, वो बहुत चकित हो गई कि स्कूल, व्हाट्स देयर रिटन अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मार्गी ने कहा इस बुक में क्या लिखा है स्कूल के बारे में? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है. तो Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in the geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यहाँ पर यह है कि मार्गी को शुरू से ही स्कूल्स नहीं अच्छे लगते थे. अब वो बुक जब उसने देखा कि बुक में भी स्कूल के बारे में लिखा था, तो वो और भी ज़्यादा स्कूल को हेट करने लगी, पहले से भी ज़्यादा. क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, क्योंकि फ्यूचर में ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे तो ओनली मैकेनिकल टीचर्स ही होंगे. तो मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट देते थे ज्योग्राफी का, एंड वो क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का टेस्ट होता था वो बहुत बैड होता था, वर्स, और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. और फिर उसकी मदर उससे गुस्से होते थे, और फिर उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि इसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते इस ज्योग्राफी में. So he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Okay, the man which came, the county inspector whom Margie's mother called to set the mechanical teacher. So he was a round little man. वो जो मैन था वो राउंड लिटिल मैन था और उसका फेस रेड था. तो उसके पास एक टूल्स का बॉक्स था जिसमें बहुत वायर्स और डायल्स रखी हुई थी. उन्होंने उस पर्सन ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, उसने थोड़ा सा स्माइल किया और मार्गी को एप्पल दिया. फिर उसने टीचर को अपार्ट, देन टुक द टीचर अपार्ट, वो टीचर को उठाया और साइड में ले गया.
टीचर यहाँ पर किसे कहा गया है? मैकेनिकल टीचर को, ह्यूमन टीचर को नहीं, टीचर कहा गया है मैकेनिकल टीचर को। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे ओपन किया, उस मैकेनिकल टीचर को उस कंप्यूटर को ओपन किया। एक बार जब उसने ओपन कर दिया तो मार्गी को लगा कि अब वो उसे क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि शी हेट कंप्यूटर, उसे नहीं पसंद थे। और लेकिन जो वो था काउंटी इंस्पेक्टर, वो बहुत एक्सपीरियंस था कंप्यूटर को रिपेयर करने में, और विद इन एन आवर उसने 1 घंटे में कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया। और वो फिर से उसे टीच करने के लिए मार्गी को, तो मार्गी ने जब उसे देखा तो वहाँ पर उसने इसकी अपीयरेंस बताई है, वो कैसे अपीयर हो रहा था मार्गी को, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसे लगा कि ये बहुत बिग है, बहुत ब्लैक है, और बहुत अगली मीन्स डर्टी है, बिग स्क्रीन जहाँ पर उसे क्वेश्चंस और आंसर्स पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट Margie had was the slot where she had to put homework and test papers. क्योंकि हमने पिछले पैरे में पढ़ा था कि जब उसने रिपेयर कर दिया तो यहाँ दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना भी नहीं माड़ा था, इतना भी नहीं, वो अच्छा था। और मोस्ट वॉज और मार्गी जो सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो थी स्लॉट। एक स्लॉट था जो सबसे ज़्यादा हेट करती थी, जहाँ पर उसे अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे और वो उसे नहीं पसंद थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. She always means उसे हमेशा लिखने पड़ते थे, पंच कोड में लिखना पड़ता था जो बनाया गया था उसे लर्न करवाने के लिए, जब वो 6 years old की थी। एंड द मैकेनिक, अब जब वो टेस्ट देती थी, टेस्ट पेपर्स बनाती थी, तो वो जो मैकेनिकल टीचर होता था, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर बहुत फास्ट होता था, तो वो टाइम ही नहीं लेता था मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने स्माइल किया, और जब उसने फिनिश कर दिया अपना वर्क, कंप्यूटर को सेट कर दिया, तो उसने मार्गी के हेड को पैटेड किया, जैसे हम गेस्टर्स आते हैं हमारे सिर को सहलाते हैं, वैसे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे पैटेड किया मार्गी का हेड। और उसने उसकी मदर, मार्गी की मदर जिसका नाम था मिसिस जोन्स, उसकी मदर का नाम था मिसिस जोन्स, और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को कहा कि इसमें इस लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है, लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है, और जो जियोग्राफी सेक्टर था वो इसके लेवल से ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो क्लियर नहीं कर पा रही थी, और अब मैंने सही कर दिया, इसे उसके लेवल तक कर दिया। और अब ये इसका ओवरऑल जो आएगा रिजल्ट वो अच्छा आएगा जियोग्राफी में। और उसने फिर मार्गी का हेड पैटर किया, he patted the Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो खुश नहीं थी
क्योंकि उसने ये होप की थी, उसने ये सोचा था कि ये मेरे टीचर को, इस मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। क्योंकि एक बार जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर, उसके जो मैं कंप्यूटर में हिस्ट्री सेक्टर था, वो पूरी तरह से मिट गया था, ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और उसे सेट करने में पूरा 1 महीना लग गया था, लेकिन उसका तो सिर्फ 1 आवर में ही सेट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ये तो सब हेट करते हैं। तो टॉमी looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा और उसने कहा कि ये जो हम जिस स्कूल में हम जाते हैं, ये वो स्कूल नहीं है, स्टूपिड। उसने उसे स्टूपिड बताया, और ये वो स्कूल है जो हमारे समय से हंड्रेड्स ईयर अगो होते थे, जो 100 से 100 साल पीछे स्कूल थे हमसे, ये उस स्कूल के बारे में लिखा गया है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने सुपीरियर वे में ये कहा कि सेंचुरीज अगो, बहुत सदियां पहले। मार्गी वॉज हर्ट। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी was hurt. वो हर्ट हो गई एकदम से। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि जो स्कूल पिछले समय में पहले होते थे वो कैसे होते थे। तो बुक जो थी तो वो टॉमी के पास थी, और वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, और वो टॉमी के शोल्डर के पास आकर वो बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो उसने कहा कि क्या, मार्गी ने कहा, क्या टीचर होते थे उनके पास जो उस स्कूल में जाते थे बच्चे। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये टॉमी है और ये मार्गी है। बुक टॉमी के पास है। दिस इज अ बुक वेयर अबाउट द स्कूल रिटन, and this is the schools in the present days. This is school now, which schools we have, this is the schools in the present day. Or the Margie and Tommy don't know about these schools, so they are going to read. So Margie is thinking this. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher, it was a man. तो टॉमी ने कहा, जब मार्गी ने पूछा था कि क्या यहाँ पर टीचर होते थे वहाँ पर, तो टॉमी ने कहा श्योर, उनके पास टीचर होते थे, लेकिन वो टीचर रेगुलर नहीं होते थे। द टीचर wasn't regular, that was not a mechanical teacher, that teacher was a man. एक ह्यूमन मैन था, लेकिन एक ह्यूमन मैन था जो रेगुलर नहीं था। तो उसने कहा, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो मार्गी ने कहा कि अ मैन, हाउ कुड अ मैन, उसने कहा कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता था, हमें तो सिर्फ मैकेनिकल टीचर्स का ही पता था। तो उसने कहा कि वो सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स को थिंग्स बताता होगा और होमवर्क देता होगा, तो उनसे क्वेश्चन पूछते होगा। तो उसने कहा, टॉमी ने, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। उसने कहा कि जो मैन होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता, जैसे मैकेनिकल टीचर इतने स्मार्ट होते हैं हम, लेकिन ह्यूमन टीचर जो हमारे प्रेजेंट डेज में है, उसने कहा कि वो इतने स्मार्ट नहीं होते, लेकिन जितना मेरे टीचर को, टॉमी ने कहा, जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है उतना तो मेरे फादर को ही पता है। He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So, he knows almost as much, I betcha. तो मार्गी ने कहा कि तुम्हारे फादर को पता होगा इतना, आई एम श्योर। आई बैचा मीन्स आई एम श्योर, हेयर इज रिटन बैचा मीन्स आई एम श्योर। तो मार्गी वॉज प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी वॉज डिसएग्री विद दिस, डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्री, दैट टॉमी ने कहा था कि मैन पढ़ाता है बच्चों को,
तो उसे ये डिसाइड लगा, तो उसने कहा कि आई वुडेंट वांट, उसने कहा कि मुझे एक स्ट्रेंज मैन अपने हाउस में नहीं चाहिए पढ़ाने के लिए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी ने कहा कि, तो उसने जोर से हंसकर कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता मार्गी कि टीचर हमारे घर पर नहीं आते पढ़ाने के लिए, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, टीचर वहाँ आते हैं और सभी बच्चे इकट्ठे होकर उस स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज, जो सेम एज के होते हैं, एक ही एज के होते हैं, वो एक ही क्लास में होते हैं और वो सेम चीज़ ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and a girl it teaches, and that each kind has to be taught differently. टॉमी ने कहा था कि वो सेम एज के बच्चे सेम थिंग पढ़ते हैं, तो मार्गी ने कहा कि लेकिन मेरी मॉम ने तो ये कहा है कि वो टीचर को एक ईच बॉय एंड गर्ल पे माइंड अपना सेट करना पड़ता है, उसे अलग ईच किड को वो टॉट अलग अलग ईच बच्चे को अलग अलग चीज़ पढ़ाता है और उसे माइंड सेट करना पड़ता है फॉर ईच बॉय एंड गर्ल। नेक्स्ट, जस्ट अ थीम सेम दे डिडंट डू इट दैट वाई देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। उसने कहा कि ऐसे ही है, अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो बुक मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो जब टॉमी ने कहा कि अगर तुम्हें बुक्स नहीं पसंद तो मत पढ़ो बुक, तो उसने कहा मैंने कब कहा कि मुझे बुक नहीं पसंद, और उसने जल्दी से कहा, उसने कहा कि वो बुक पढ़ना चाहती थी और उस फनी स्कूल्स के बारे में रीड करना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. तो अब उन्होंने बुक हाफ भी नहीं थी पढ़ी अब, तो मार्गी की मदर ने कॉल किया मार्गी स्कूल। अब उसका स्कूल का टाइम हो गया था, मीन्स उसके होम में ही उसका एक वर्चुअल रूम था। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो जब मार्गी की मदर ने कॉल किया कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, तो मार्गी ने कहा अभी नहीं मम्मा। तो मिसेस जॉन्स, मार्गी की मदर ने कहा नाउ, अभी तुम्हें जाना होगा स्कूल के लिए अपने वर्चुअल रूम में। तो उसकी मदर ने कहा कि ये टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने का, तो उसे भी कहता है। ओके, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक से मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं स्कूल के बाद, मीन्स वो उसके होम में स्कूल था, तो स्कूल के बाद वो तुम्हारे पास सेम बुक पढ़ सकती है और टाइम। तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। तो नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली। तो जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी ने कहा मे बी, शायद, ही सेड नॉनचैलेंटली मीन्स उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था जब उसने कहा कि मैं बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ, तो उसने कहा शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बनीथ हिज आर्म। तो वो विस्लिंग करता हुआ चला गया डस्टी ओल्ड बुक को अपनी आर्म के नीचे लेकर। ओके, देन Margie went into the class. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो यहाँ बताया गया है कि जब उसका टाइम हो गया था स्कूल का, तो वो अपने स्कूल रूम में आई। वो स्कूल रूम उसका कहाँ था, उसके राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट ही था, आगे ही था। तो और द मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर, वो मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहा था मार्गी की, और वो सेम टाइम पर हर रोज वहाँ होता था, हमेशा मैकेनिकल टीचर वेट पर, सैटरडे एंड संडे के अलावा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये है मार्गी का वर्चुअल क्लासरूम। द मार्गी's mechanical teacher was flashing on the screen. See, this is a screen and this is the mechanical
teacher of the Margie. Okay, this is a classroom. See, she is sitting alone. There are no friends, no human teacher. This all is the future things. This is a robot, computers. She haven't any book, pen or pencil. And next, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका टीचर ऑलवेज अपने टाइम पर सेम टाइम पर हर रोज होता था, संडे और सैटरडे। लेकिन जो उसकी मदर थी वो कहती थी कि अगर गर्ल्स रेगुलर पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकती थी। ओके, the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो जब वो अपने क्लासरूम में आई तो वेट कर रहे थे। तो जब वो आ गई अब मार्गी अपने रूम में, तो स्क्रीन लिट अप, स्क्रीन ओपन हुई और उसने कहा मैकेनिकल टीचर ने कि आज हम अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नेम है उस लेसन का। और उसने मैकेनिकल टीचर ने ये भी कहा कि कल का होमवर्क स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। नेक्स्ट पैरा, Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and take about it. तो मार्गी को ये अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा होमवर्क डालो। तो मार्गी ने सोचा, ओल्ड स्कूल के बारे में सोचा। जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तो उसने सोचा कि सब बच्चे एक साथ नेबर से अपने आसपास से इकट्ठे होकर हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल जाते, अब टुगेदर स्कूल यार्ड में और क्लासरूम में, स्कूल रूम में टुगेदर बैठते, इकट्ठे होकर बैठते और उनको सेम थिंग लर्न करवाई जाती और उनको सेम होमवर्क दिया जाता। तो एक दूसरे से वो बातें करते और होमवर्क की हेल्प ले लेते। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and anything else. ओके, तो उसने कहा कि वो टीचर्स थे जो पास्ट टाइम में वो थे पीपल, मैकेनिकल टीचर नहीं थे। तो मैकेनिकल टीचर वो उससे क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन दिस एंड दिस, वो फ्लैशिंग कर रही थी स्क्रीन, लेकिन मार्गी तो सोच रही थी स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैड लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। So Margie was thinking about the past school that वो बच्चों को अपना स्कूल कितना पसंद होगा, वो अपने स्कूल को कितना पसंद करते होंगे ओल्ड डेज के। तो वो ये सोच रही थी कि उनको कितना फन होगा, उनको कितनी खुशी होगी, फन दे हैड पास्ट टाइम स्कूल्स के बच्चों को। तो चैप्टर नेम इज आल्सो द फन दे हैड। हेयर दे मीनिंग इज द पास्ट स्कूल स्टूडेंट, द फन दे हैड, उन्हें कितना फन था। लाइक अब हम पढ़ने जाते हैं तो हम बहुत खुशी खुशी पढ़ने जाते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गे एंड टॉमी। Marge was 11 years old and the Tommy was 13 years old. Next, what did Marge write in her diary? Marge ने अपने डायरी में क्या लिखा था? Marge wrote today Tommy found a real book. उसने लिखा था आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है जिसके पेजेस प्रिंटेड है। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर को बिग भी कर सकते हैं, वर्डिंग डाल सकते हैं और लेंथी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डिड मार्गे इवन हैड मार्गे इवन सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने ऐसी पेजेस पर प्रिंटेड हुई बुक पहले देखी थी कभी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी को उस बुक की क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी? मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट वर्ड्स प्रिंटेड ऑन बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन स्क्रीन। शी ऑल्सो फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स ऑन पेज ऑलवेज रिमेन्ड द सेम। ऑल द थिंग्स वर स्ट्रेंज फॉर मार्गी। क्या स्ट्रेंज था कि जो वर्ड्स थे वो स्टिल वहाँ पर ही खड़े रहते थे और वो जो
पेजेस पर जो लिखे थे वर्ड्स वो सेम ही होते थे हर बार, लेकिन नेट पर कंप्यूटर स्क्रीन पर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? टेली बुक इज अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। टेली बुक वो होती है जो हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जैसे आप ये मेरी नोटबुक स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है टेली बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके क्लासमेट्स थे? मार्गी स्कूल वॉज जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन हर होम itself right next to her bedroom. Margie has her virtual school in her house. She had not classmates as we see in present day schools. मार्गी का स्कूल कहाँ था? एक रूम ही था, वो जो वर्चुअल रूम उसके हाउस में ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके पास कोई क्लासमेट नहीं थे जैसे हमारे पास प्रेजेंट डे स्कूल्स में होते हैं। What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy learned subjects like geography, arithmetic and history from the telebooks. This is very easy answer. Next is short answer type question. First is what kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy have mechanical teachers. They had a large screen on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They had to write their answers in a punch code and mechanical teacher calculate the marks immediately. यहाँ पर बताया कि मार्गी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे, वहाँ पर एक लार्ज स्क्रीन थी जहाँ पर इनको क्वेश्चंस दिखाए जाते थे और एक स्लॉट था जिसमें इनको अपने होमवर्क एंड टेस्ट पेपर डालने होते थे, वो प्रॉपर पंच कोड में डालने होते थे और वो इनके मार्क्स कैलकुलेट कर देते थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इज व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, ये हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। Answer, Margie's mother sent for the county inspector because she had appeared in many tests in geography, but there was no improvement in her performance. It got worse. She wanted to find the reason behind Margie's performance. मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? क्योंकि मार्गी के जियोग्राफी के टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे थे वो बहुत बैड थे, तो वो चाहती थी कि इसकी कोई इम्प्रूवमेंट हो, इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए, पुअर परफॉर्मेंस के मार्गी की रीज़न जानने के लिए। नेक्स्ट, लेट मी शो फुल आंसर। Next is what did he do? Here he means county inspector. What did he do? county inspector ने क्या किया? He gave Margie an apple and started working on mechanical teacher. He found that the computer was not working properly and was giving lessons which was of higher level that what Margie is required. He managed to resemble it and it started giving lessons suitable for Margie's age group. तो उसने क्या किया? उसने मार्गी को एप्पल दिया और मैकेनिकल टीचर पर वर्क करने के लिए शुरू हो गया। तो उसने ये पता लगाया उस कंप्यूटर में ये क्योंकि वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मार्गी को लेसन दे रहे थे वो उसकी एज के मुताबिक नहीं थे, वो बहुत हायर लेवल के थे, तो उसने उसे रिसेंबल करके उसके लेवल के अकॉर्डिंग कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए? उसने मार्गी वाज डूइंग बैडली क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था, मैकेनिकल टीचर ने बताया कि वो इसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं था, तो उसने ये स्लो डाउन कर दिया उसकी एज और उसकी मुताबिक, उसके एज के मुताबिक। तो आप ये आंसर मैंने अब नहीं बोला, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। The next question is, here is only question, answer is on next page. What had once happened to Tommy's teacher? हम टॉमी के टीचर को एक बार क्या हो गया, हमें पता था कि हिस्ट्री चैप्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, वो उसे पूरा मंथ लगा था। तो आई विल शो आंसर। The answer is once the history sector of Tommy's teacher had blanked out and took a month for a repair. मंथ मैंने आपको बताया कि मंथ लगा था, उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? तो मार्गी के जो स्कूल डेज थे वो रेगुलर थे,
फॉर स्कूल के लिए, इफ यस देन व्हाई, क्यों? तो आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. दिस वाज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स help little girls. I have written this help 2 times. So girls learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्गी के स्कूल डेज थे वो रेगुलर थे, वैसे तो उसका मैकेनिकल टीचर था वो सैटरडे एंड संडे नहीं आते थे, नहीं लगता था उसका स्कूल, लेकिन जो उसकी मदर थी वो कहती थी अगर गर्ल्स रेगुलर लर्न करे तो वो अच्छा लर्न कर सकती हैं. नेक्स्ट इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ने ओल्ड काइंड के स्कूल कैसे डिस्क्राइब किए, तो हम देखते हैं. Tommy described the old kind of school as special building where all the kids studied together. There were hundreds of students studying in school. There was a human teacher who gave them lesson to all boys and girls of same age group. The student used to shout and laugh together in schoolyard. ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर में. So this is last question. How does he describe the old kind of teachers? Tommy described that the old kind of teachers was a man who taught the student inside a special building. He asked them question and gave them homework. He taught the same lesson to whole school. ओल्ड काइंड के टीचर कैसे थे, वो एक ह्यूमन टीचर था जो बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे, उनको क्वेश्चन और होमवर्क देते थे और होल क्लास को सेम ही लेसन पढ़ाते थे. These are long question answer. मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना. What are the main features of mechanical teacher and school rooms that Margie and Tommy have in story? जो मार्गी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे उनके मेन फीचर लिखो, वो क्या क्या थे स्टोरी में. And next is why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद थे और वो क्यों ये सोचती थी कि जो ओल्ड काइंड के स्कूल थे वो बहुत उनमें फन किया जाता था. तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो मार्गी स्कूल, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था, उससे टेस्ट लेते थे, उससे होमवर्क रॉड डालने के लिए देते थे. और ओल्ड काइंड के स्कूल फन थे क्योंकि वो बच्चे इकट्ठे जाते थे और एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते थे एक्सेट्रा. आप चैप्टर से देख सकते हैं. नेक्स्ट इज डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर. मार्गी इसमें क्या है कि मार्गी का स्कूल था वो हमारे स्कूल से मीन्स प्रेजेंट स्कूल से कैसे डिफरेंट है, इसका हमें आंसर लिखना है. तो फर्स्ट में हमें क्या लिखना है कि उसके टीचर, उसके पास स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन होती थी जहाँ पर स्क्रीन देखते थे, वो अकेले बैठते थे. एनीथिंग एल्स अबाउट द स्कूल ऑफ मार्गी एंड टॉमी यू कैन राइट. ओके, थैंक्स. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, बाय.